बिलावल महला पंजवा। पूरे गुर ते वडियाई पाए। पूरे गुर ते वडियाई पाए। अचिंत नाम बसिया मानो आई। हौमै माया शब्द जलाई। दर साचै गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवों मैं अबर ना काजा। आनंद नो आनंद होवै मन मेरे। गुरमुख मांगू तेरा नाम नवाजा। रहाओ मन की प्रतीत मन ते पाई। पूरे गुर ते शब्द बुझाई। जीवन मरण को संसार बेखै। बहुड़ न मरै ना जम बेखै। घर ही मह सब कोट निदान। सतगुर दिखाए गया अभिमान। सद ही लागा सहज ध्यान। अन दिन गावे एको नाम। इस जुग में वडियाई पाई। पूरे गुर ते नाम त्याई। जह देखा तै रहया समाई। सदा सुख दाता कीमत नहीं पाई। पूरे भाग गुरपुरा पाया। अंतर नाम निदान दिखाया। गुर का शब्द अतमत मीठा लाया। नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया। नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया। शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह मालक जी दी पावन ते पवित्र हाजूरी दे विच सुभाईमान गुरु प्यारिओ, आप वडभागे हो जो साहिबा दी मुबारक बाणी सरवण कर रहे हो। आओ गुरुदेव पातशाह जी अज दे इस पावन उपदेश विच की बख्शिश करते ने। बख्शिश दे पात्र बणीए। गुरु की पावन बाणी नूं अपने हिरदे दी तजौरी विच इकत्तर करके जिंदगी दे विच वरतीए।
ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਨਿਚੋੜ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸੇਵੋਂ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਜਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸੇਵੂ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਜਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਆ। ਆਪਣੀ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜਾ। ਆਪਣੀ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਛਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਵੀਰ, ਸਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛਕੀਏ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਰੂਪੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਛਕਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
जी मतलब मैं अवर काज जेड़े मर्जी कारज में जुड़िया रहां पर मेरा चित्त रूह खुश नहीं हुंदी। ते यही आदत साडी बन जाए, यही आदत किहदी बननी आ, साडी बन जाए। बस फिर साडी जिंदगी है जिहड़ी ओह कह लो वो बदल जाएगी। रहाओ दे बंद विच गुरु साहब ने कहा, जगदीश सेवूं मैं अपने मालक नूं सेवदा हां, अराधदा हां, याद करदा हां, अवर ना काजा ਉਹਦੇ नाम तो बिना होर कोई काम करा ते मेरा चित्त नहीं लगता, जी नहीं लगता गा। अगे पातशाह जी कहते ने, आनंद न आनंद मन मेरा गुरमुख मांगू तेरा नाम नवाजा। हे गरीब नवाज पातशाह, मैं गुरमुखां वाली विरती बना के तेरे नाम दी दात तेरे दर तो मंगदा हाँ। ये दात मेरे जीवन विचों कदे ना विसरे, ये दात मेरे जीवन विचों जानी कि मेरे अंदरों कदे भी ना विसरे। ते जे ये दात विसरदी है तो मेरा तेरे नालों नाता टुटण करके मेरी जिंदगी चिंता दी बीमारी विच फस जाती है। ते हुण आपां नूं पता भी जे चिंता दे विषय ते आपां गल करिए ना, चिंता ते चिंता दा शिकार अज हर कोई है, चाहे छोटा ते चाहे कोई वड्डा। जिहड़ा गरीब आ ना उहनूं तां चिंता है ही है भी मैं अपने परिवार नूं अपने बच्चे नूं किवें पालां, ते जिहड़ा अमीर आ चिंता दा शिकार हो भी है। ते चिंता तो बचदा कौन आ? जो गुर उपदेश नाल गुरबाणी नाल सहज सुभाअ जुड़ जाता है। गुरु नानक साहब ने तो गल क्लीयर ही की है ना, नानक चिंता मत करो, चिंता ते सही है। गुरु साहब जी कहते चिंता तो बिल्कुल ही छड़ दे भाई। तो हुण कुदरती सुहागी चिंता का रोग हरेक नूं डॉक्टर कोले पहलां जाइए ना, आपां किसी रोग की दवाई लैण सब तो पहलां डॉक्टर ये कहंदा भी तैनूं टेंशन लगदी आ, टेंशन चिंता। चाहे किसी नूं गंदे काम करके चिंता, ते चाहे किसी नूं घरेलू परिवारक कामां दी चिंता, चाहे किसी नूं कुछ देण दी चिंता, चाहे किसी नूं कुछ लैण दी चिंता। चिंता दा शिकार हर कोई है, एक नूं छड्ड के, एक परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरू नूं छड्ड के। इत्थे गुरु साहब ने की कहा, कहंदे भी जे मैं वो मालक परमेश्वर नाल अपना ध्यान ना जोड़ां तां चिंता सुभाविक ही मैनूं वड्ढ के खाण लग जांदी आ। ते चिंता नूं चिखा समान भी कहा गा, जिवें जिहड़ी चिखा ना ते ओनूं भी आपां जोड़ लैने अपने जीवन दे नाल भी। जिहो जी बंदा चिंता दी बीमारी का शिकार हो गया ते जिहो जिहा बंदा चिखा दे विच बैठ गया, चिणिया गया। चिखा मनुख दे शरीर नूं, मुरदे शरीर नूं मचा दिंदी, थोड़े टाइम च दींदे आ। ते जिहड़ी चिंता दी बीमारी आ ये भी बंदे नूं अंदरों भुन दिंदी आ, कि खत्म कर दिंदी आ, मचा दिंदी आ, बंदे नूं बिल्कुल 0 पॉइंट ते लिआउंदी है चिंता। ते गुरु साहब ने सानू चिंता तो मुक्त होने दे लई बार बार कहा गा। फिर अगे पातशाह जिक्र करते ने, पूरे गुर ते वडियाई पाई मैं पूरे गुरु कोलों भाई शोभा प्राप्त कर लई है, वडियाई शोभा। ते अगे पातशाह कहंदे, अचिंत नाम वसिया मन आई। चिंता नूं खत्म करने वाला नाम अचिंत, जिहड़ा मैनूं अचिंत कर देवे, चिंता तो मुक्त कर देवे, वो नाम वो वाहिगुरू दा ज्ञान मेरे दिमाग च वस गया कि हुण वो ज्ञान किहड़ा जो आपां गुरु तो सुन रहे हाँ। असलीयत ये आ भी गुरबाणी है जिहड़ी चिंता दी बीमारी है। टोडी महल राग दे विच ना गुरु साहब ने एक जिक्र कीता, तुहाडे सारिआं दे वो पावन शब्द याद होवेगा। पातशाह जी कहंदे, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सूख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी।
मेरे ख्याल मुताबिक जिथों तक गुरु साहब ने तुच्छ मत बुद्ध बख्शिश कीते ना थोड़ी जी, उहदे मुताबिक इउं अंदाजा भी जे गुरु कहंदा ना भी पूरी दुनिया दे विच तू निगाह मार के वेख, चिंता तो मुक्त होण दे लई, चिंता दी बीमारी तो खैड़ा छड़वाउण दे लई दुनिया दे विच कोई अज तक दवाई नहीं बनी। असलीयत है, सच है, बिल्कुल कोई दवाई नहीं बनेगी, सच्चाई है बिल्कुल। हाँ उदा बंदे दे दिमाग नूं डैड करने वाली दवाई है भी बंदे नूं फिक्र पैगी, आप आम ही कह देना नींद दीआं गोलियां दे दो तो डॉक्टर कोले लेके जाइए, उन्होंने टेंशन जी लगती आ, वो सब तो पहला नींद दीआं गोलियां ही दिंदा बंदे नूं, भूखी चढ़न लग जांदी ना कहने आपां भी भाव बंदा सौ जांदा गा। अच्छा 2 घंटे सुत्ता, 4 सुत्ता, 5 सुत्ता, भावें 8 घंटे सुत्ता, जदों उठूगा चिंता फिर मुक्त नहीं हो सकिया। अच्छा जिथे अपने शरीर की बीमारी का शुद्ध इलाज होवे ना, पता लग जाए, आपां नूं तसल्ली हो जाए, मन नूं प्रतीत हो जाए, विश्वास आ जाए भी इस वैद की दवाई ना मैं ठीक हाँ, तो बंदा उहदे कोले बार बार जांदा। ते हुण जिहड़े वैद कोले साडी चिंता की बीमारी का इलाज है, उहदे कोले असीं बहुत घट आउणे आ। उस वैद कोले, उस डॉक्टर कोले असीं बहुत घट आउणे, ते किरपा की करनी आ भी आपां उस वैद कोले, उस डॉक्टर कोले जरूर आउणा, जिहड़े डॉक्टर कोले आउण दे नाल साडी चिंता दूर हुंदी आ। अच्छा दूजी गल दूर तद होगी जे इस डॉक्टर तो आपां दवाई परहेज रख के लवांगे। बस ये नुकता ध्यान च रखना, शरीर की बीमारी का इलाज कराउण दे लई डॉक्टर वालों दस्सिया होया नुकता, दवाई लैण दा तरीका वो भी ध्यान च रखना, परहेज भी ध्यान च रखना, ते सही ढंग नाल दवाई भी लैनी आ। यही गल गुरु नानक साहब दी, चिंता तो मुक्त होना ना आउण नाल वापस गेड़ा कढ़ के मुड़न दे नाल ना चिंता तो तू मुक्त नहीं होवेगा। कुछ क दवाई परहेज निजम वरतने पैणगे। वो निजम किहड़े आ? अमृत वेला, सच नाउं, वडियाई विचार। वो निजम किहड़े आ? अपनी जिंदगी की किरिया नूं गुरमत दे अनुकूल कर लै, मन मत दे अनुकूल नहीं। ये निजम आ भी गुरु नाल अपने आप नूं जोड़, चंगे कम्मां नाल जोड़। गुरु मीनस ज्ञान, ज्ञान दे नाल अपनी जिंदगी च चंगियाई आउंदी है। जदों चंगे कम अंदर आ गए ना, भावें घर करके गरीब होइए, चिंता तो जरूर मुक्त हो जाएंगे। अज दे समय मुताबक देख लो, जिन्ने बाबे ने सारे चिंता दे शिकार ने। आपां नूं पता ना भी साडी दुनिया कुछ क उंगलां ते गिणे जाण वाले लोकां ने लुट के खा ली। नंबर 1 ते लीडर लोग, नंबर 2 ते धार्मिक आगू संत बाबे, नंबर 3 ते रिश्वतखोरी अफसरशाही नाल जुड़ी हुई है, जो रिश्वतां जुड़ियां हुई ना, ते नंबर 4 ते फैशन परस्ती ते नशा। इन्हां चीज़ां ने साडे समाज नूं लुट के खा लिया। अच्छा इन्हां चीज़ां दा सुधार करन दे लई ज्ञान दी लोड़ आ, पर ज्ञान कोई प्राप्त करना नहीं चाहुंदा। ना लीडर चाहुंदे ने, ना बाबे चाहुंदे आ, ना नशे करन वाले, ना फैशन परस्ती करन वाले। ज्ञान तो ये सारे कैटागरी दे लोग दूर ने, बाबे भी दूर ने। बाबे उदां गिणती दा कुछ करन दे लई दस सकदे ने, पर ज्ञान प्राप्त करन दे नहीं दसणगे। वो नहीं दसणगे भी गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा तैनूं बंदियां नशियां तो, विषयां तो, विकारां तो मुक्त करती है, नहीं वो नहीं दसणगे। जो उन्होंने दस दिता तो फिर उन्हों दा काम ठप्प हो जाऊगा। इसे करके माड़े कम्मां करके, रिश्वतां लैण करके, धोखा बेईमानियां करन करके की बाबे की महापुरख होण वाले, लीडर की अफसर की आम की खास सारी चिंता दे शिकार ने। हुण गुरु नानक साहब नूं आपां 1-2 मिनटां दे लई कोल आके पुछीए भी सच्चे पातशाह तुहानूं कोई चिंता सी? वो कहंदे ना। चलो गुरु नानक साहब तां बहुत वड्डी महान हस्ती ने, आपां भाई मरदाना जी नूं पुछ लईए भी तुहानूं कोई चिंता सी? वो कहंदा ना। मरदाना जी भी 24 घंटे गुरु नानक साहब दे नाल रहिंदे सी। आपां भाई लालू नूं पुछ लो थोड़े टाइम वास्ते,
भी तुहाडे घर दे विच गुरु साहब गिणती दे 20-22 दिन रहे ने, 2 वारी तुहाडी गुरु नानक साहब दे नाल मिलनी हुई है जिंदगी च, की तुहानू कोई चिंता है? वो कहंदा ना। आपां पुछगे भी क्यों नहीं चिंता? वो कहंदा मैं गुरु नानक दी सिੱਖਿਆ नू ग्रहण कर लिया। बाबा लैणा जी नू पुछगे भी तुहानू कोई चिंता है? वो कहंदा ना। क्यों? कहंदा मैं भाई जोध तो ते भाई सिंह पुल तो सिੱਖਿਆ लेके ना मैं चिंता तो मुक्त हो गया, चिंता ही खत्म हो गई मैनू। जो चिंता तो खत्म हो गया ना, मैं ये मानदा भी मेरी जिंदगी च माड़े कर्म खत्म हो गए। माड़े कर्मां तो मुक्त होना, चिंता तो मुक्त होना, चिंता तो मुक्त होना, माड़े काम माड़ियां बीमारियां छड्ड देणियां। हुण आपां कहा सी भी जिन्ने लीडर, जिन्ने अफसर, जिन्ने संत बाबे गुरु ज्ञान नाल टुटे हुए ने ना, सारी चिंता दे शिकार ने। बाणी दा फैसला मेरा अपना फैसला नहीं। गुरदेव पातशाह ने की लिखिया ना, बड़े 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 कहा, बड़े बड़े जो दिसै लोग तिनको व्यापै चिंता रोग। हुण उत्थे पातशाह जी कहंदे ना भी जिन्ने भी दुनिया दे विच वड्डे वड्डे लोक ने, वड्डे वड्डे तो भाव चाहे वो अफसर ने, चाहे लीडर ने, ते चाहे वो अपने आप नूं कहाउण वाले संत बाबे ने। हुण संत बाबे किहड़ा अपने आप नूं छोटे कहाउंदे ने, वड्डे ओह कहाउंदे ने भी साडे वर्गा कोई नहीं। कुछ असीं भी चढ़ा दिंदे भी साडे महापुरखां वर्गा तां कोई महापुरख है ही नहीं गा, पर महापुरख गुरु ग्रंथ साहिब आगा। हाँ, ये गुरु ग्रंथ साहिब वाल हथ करके आपां कहीए भी साडे गुरु वर्गा गुरु नहीं कोई है। इत्थे कहना साडा हक बनदा, फर्ज बनदा है ना। हुण भाव की आ, सारी चिंता च ने। गुरु साहब कहंदे जिन्हों मर्जी छेड़ के वेख लो, हर एक नूं चिंता दी बीमारी आ। फिर पातशाह ने बाणी विच लिखिया की आ, पातशाह जी कहंदे भी जिन्ने भी तू वड्डे वड्डे वेखदा ना, सारी चिंता दे मरीज ने भाई, जिन्ने भी देखदागा। फिर इत्थे गुरु साहब जी ने सानू एक तरीका दस दिता, कहंदे चिंता तो मुक्त होना ना तां आ काम कर, पूरे गुर ते वडियाई पाई, पूरे गुरु कोले आ ते वडियाई दा पात्र बन, शोभा दा पात्र बन, उस्तत दा पात्र बन, सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान दा पात्र बन। जदों तू इस चीज़ दा पात्र बन गया ना, फिर पातशाह जी कहंदे ने चिंत नाम वसिया मन आई। मेरे मन दे विच, इत्थे मम्मा नन्ने नूं हुशियारी आ, मन मेरे मन दे विच अचिंत नाम ओ दवाई बस गई, जिहड़ी दवाई लैण दे नाल मैं चिंता तो मुक्त हो गया। मैनू चिंता नहीं कोई रहेगी। मतलब मैं गुरदेव पातशाह दे शब्द नाल, ज्ञान नाल जुड़ के ना अचिंत हो गया। चिंता नहीं, मैं चेतन करना शुरू कर दिता। फर्क थोड़ा ही आ, चिंता ते चेतन थोड़ा ही फर्क आ ना। हुण वेखियो भी चिंता छड्डी गई, खत्म हो गई, चिंतन शुरू हो गया। चिंतन तो भाव चिंता मेरे शरीर नूं, मेरी आत्मा नूं खत्म करदी सी। चिंतन याद करना, वो रब दी याद ने मेरे शरीर नूं, मेरी आत्मा नूं नरोआ बनाउणा शुरू कर दिता, ते नरोआ शरीर ही कामयाब आ। किसी ने अपनी कुछ कविता दे रूप विच भी लिखिया ना, तंदुरुस्ती दा मेला, मेला नहीं बिमारां दा। कोई व्यक्ति कहंदा गा भी जिहड़ा मेला ना दुनिया रूपी आ मेला, आ दुनिया एक शहर आ, एक बाजार आ, ये बाजार दे विच जे कोई तंदुरुस्त आ ना तां ओही शोभा दा पात्र आ। जे कोई तंदुरुस्त आ, अच्छा जे कोई तंदुरुस्त नहीं है तां ओह वडियाई दा पात्र, शोभा दा पात्र नहीं है। निगाह मार के वेखो, तंदुरुस्त बिमारां दा काहदा जीण आ भाई दुनिया च है कोई जीण? देखो देखो सोच के देखो, जिहड़ा कोई व्यक्ति ना पक्के तौर ते किसी बीमारी दी गिरफ्त विच फस गया, उहनूं पुछ के वेखो तां कहंदा भी तां मरे दी खड़ा छुट जे ना तां चंगा, मर जाइए तां चंगा गा। मतलब तंदुरुस्ती नूं साडे समाज ने पहल दित्ती आ, बिमारां नूं पहल नहीं की। ते गुरु साहब कहंदे जे तू गुरु की पावन बाणी उपदेश नाल जुड़ गया ना, फिर तंदुरुस्त हो जाएगा अंदरों ते बाहरों, अचिंत हो जाएगा, चिंता तो मुक्त हो जाएगा। तैनू किसी काम की चिंता नहीं रहेगी। तू उस परमात्मा ते भरोसा रख के जिंदगी जिउण लग जावेगा।
हुण पातशाह जी फिर कहते ने अचिंत नाम वसिया मन आई। फिर आपां शब्द पढ़िया सी नाल नाल भी जे आपां चिंता तो मुक्त होना, सतगुर आयो शरण तुहारी मिलै सूख, सुख भी मिलूगा, नाम हर शोभा, नाम दी दात भी मिलेगी, चिंता लाहे हमारी, मेरी चिंता भी लथ जाएगी, लै जाएगी, चिंता करन दी मैनूं कोई लोड़ नहीं रहेगी। फिर पातशाह जी कहते ने हौमै माया शब्द जलाई, मेरे अंदर हौमे सी, मेरे अंदर हौमे दा अंश सी, बीज बीजिया होया सी, वो मैं ना हौमे दा बीज ही खत्म कर दिता, जला दिता, जानी कि मचाता, खत्म कर दिता। हौमै माया शब्द जलाई, शब्द दी अग नाल। हुण जिहड़ा गुर शब्द आ ना, गुर शब्द विचों किहड़ी अग प्रकाश हुंदी आ। हुण दीवा उहने चानण कीता, अग तां दीवे चों ही बलदी है ना, ते अग साडे संसार नूं विषय विकारां दी भी लगी हुई आ। अग वो भी आ जो जंगलां दे जंगल, देसां दे देस साड़ दिंदी आ। अग दे बहुत रूप आ ना, ते हुण इत्थे अग दा रूप की आ? शब्द दे विचों निकली हुई लाट, ज्ञान दी लाट, ज्ञान दी लाट ने, ज्ञान दी लाट ने, ज्ञान दे दीवे ने हौमै ते विषय विकार माया ये जला दिते भाई, खत्म कर दिते, इन्हां नूं मचा दिता। हौमै माया शब्द जलाई, शब्द नाल मैं फूक दिती, ते हुण चिंता तो मेरा जीवन मुक्त हो गया, तंदुरुस्त हो गया। हुण मैनूं फिक्र करन दी लोड़ नहीं रही, चिंता करन दी लोड़ नहीं रही, अचिंत जीवन जिउणा शुरू कर दिता। दर साचा गुर ते शोभा पाई, जदों मेरा अचिंता भरिया जीवन हो गया ना, चिंता तो मुक्त हो गया, ते मैं गुरु दर ते शोभा पाउणी शुरू कर दिती। गुरु नानक साहब दर ते शोभा प्राप्त करनी शुरू कर दी। अगे पास जिक्र करते ने मन की प्रतीत, मन ते पाई, मन की प्रतीत, मन ते भरोसा। हुण देखो भरोसा ना, जिहड़ा यकीन आ, जिहड़ा विश्वास आ, जिहड़ी प्रतीत आ, ये मन दे विचों प्रगट हुंदी आ। चिता रखियो, भरोसा यकीन मन दे विचों ही प्रगट हुंदी आ। आपां कहने आ मेरा नहीं मन मनदा ना, मैनू नहीं आ फलाने बंदे ते यकीन है, आपां यही गल कहने ना भाई मेरा मन विश्वास नहीं करदा। इहदा मतलब मन दे विचों प्रगट हुंदा विश्वास। चलो गुरु साहब कहंदे किसी ते विश्वास कर भी ना, किसी ते विश्वास कर भी ना, बिना वजह तो, बिना गल तो। जे विश्वास करना ही है ना तो गुरु ते कर। गुर की प्रतीत जिहदे मन विच वस जावे, भरोसा यकीन आ जावे, जिन्हां दे जीवन विच एक अकाल पुरख वाहिगुरु तो बिना, एक परमात्मा तो बिना होर दूजे ते यकीन भरोसा नहीं है। वो सारा विषय काहदे नाल जुड़िया? मन नाल। जिन्हां नूं मन दे विचों तसल्ली हो गई भी हाँ भाई मैं गुरु तो बिना होर किते नहीं जावांगा, गुरु ते भरोसा मेरा तां। मेरे जीवन च भावें कोई हालात जिंदगी दे चंगे आउण ते भावें मंदे आउण, ये तो आपको पता ही ना भी शरीर जिहड़ी गड्डी आ ना, ये चलदियां चलदियां राह च खड़ भी जाती है, बीमार हो जाती है। चलदियां चलदियां कई बार मुश्किलां भी आ जांदियां ने, मुश्किलां कंडे खिलरे हुंदे ना ते कंडियां ते चढ़ जाती है। ते गुरु साहब कहंदे फिर यकीन काहते होना चाहिए? भरोसा। भरोसा यकीन काहते होना चाहिए? गुरु ते। गुरु ते भरोसा है तो चलदी गड्डी विगड़ गई, विगड़ी गड्डी नूं ठीक भी कर दिंदा गा। ते जे हुण विगड़ी हुई गड्डी नूं गुरु ते भरोसा ना रख के पासे कर लगे, फिर वो चेता रखो ज़्यादा बिगड़ जाती है। हुण किसी भी तरह का कोई व्हीकल आ ना, वो रुक जाए चलदा, हुण ये तो है नहीं गा भी आपां नूं मिस्त्री कोले नहीं लैके जावांगे, मिस्त्री को ले जाना ही पैंदा ना। मिस्त्री को लै जाएंगे तो मिस्त्री रिपेयर करके दोबारा यकीन दे पात्र बना दिंदा भी लै भाई मेरे वालों इन्नी क गारंटी है,
इवें जिवें शरीर रूपी गड्डी विगड़दी है ना, परिवार दी पूरी टीम आ जिहड़ी साडी 5 10 15 जिन्ने मैंबरां दी टीम आ ना, उन्हां दे विच कोई किसी तरह की खड़ोत आउंदी आ, विघन पैंदा गा, तां ओह वाहिगुरू परमेश्वर परमात्मा खुद ठीक भी कर दिंदा गा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ चलदी है तो गड्डी है खड़ गई तो आपां नूं पता भी भाई फिक्र ना कर, इहदी दुबारे रिपेयर करवा ला, ठीक करवा ला। ते जे आपां गुरु दा लड़ छड्ड के, भरोसा छड्ड के किसी पासे होर चल जावांगे ना, फिर वो साडी बेवकूफी आ। जां अपने आप ते विश्वास ही चक लवांगे भी ना बस हुण तां ढैंदी कला च वग जांदा बंदा भी हुण नहीं हल हुंदा, हुण तां सारे हल वसीले खत्म हो गए मेरे ना। गुरु साहब कहंदे भाई अपने मन दा यकीन भरोसा ना जुबान चों नहीं, शरीर करके नहीं, मन दे विचों यकीन ना केवल गुरु ते रख, एक परमात्मा ते रख। फिर पातशाह ने लिखिया कि ना कहंदे मन की प्रतीत मन ते पाई, मन दा भरोसा मन ते ही जताया, यकीन कीता, मन ने तसल्ली दवाई, हाँ गुरु तो बिना मैं होर किते नहीं जाना। फिर अगे पातशाह कहंदे ने पूरे गुर ते शब्द बुझाई, पूरे गुरु दे शब्द आसरे नाल मेरे मन दे सारे ख्याल भरम भुलेखे दूर हो गए। किहदे करके? गुरु करके। ते गुरु ते मन ने यकीन कीता। जदों यकीन आ ना, फिर साडे यकीन नूं कोई तोड़ नहीं सकदा, यकीन नूं कोई तोड़ नहीं सकदा। यकीन ते तां तुहानूं सारिआं नूं इस गल दा पता भी साडी सिख कौम दे विच, सिख कौम दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते कुर्बानियां ने, 87% कुर्बानियां ने सिखां दीआं। तो कुर्बानियां केवल अपने लिए नहीं, कुर्बानियां केवल अपने लिए नहीं, वो कुर्बानियां ने ना जिहड़ियां वो दूजियां लई आ, होरां लई। किसी वीर ने ना एक बड़ी सोहनी किताब लिखी आ, प्रश्न उत्तर, धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे जीवन नूं समर्पित, क्योंकि आप जी नूं पता गुरु तेग बहादुर महाराज जी का 400 साला मई के महीने विच आ रहा है, जानी कि 400 साल गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं इस धरती ते शरीर करके प्रकाश होया नूं हो गए। उन्हां दे जीवन नूं समर्पित 400 प्रश्न ते सवाल जवाब की बुक लिखी आ, जिस बुक का नाम पता की लिखिया गा? बहुत प्यारा नाम ही प्यारा बड़ा गा, मूरत पर उपकार दी, मूरत पर उपकार दी। हुण चेता रखियो आपां जिक्र कीता सी भी गुरु दे प्यारियां दियां कुर्बानियां, गुरु दे सिखां दियां कुर्बानियां, गुरु साहिबानां दियां कुर्बानियां, गुरु साहिबानां दा पूरा शरीरक तल ते जीवन ते आत्मक तल ते जीवन दूजियां दे परोपकारां लई आ, चंगे कम्मां लई आ। ताइयों वो बड़े सत्कारयोग वीर हरमीत सिंह जी ने उन्होंने जिहड़ी बुक लिखी है ना मूरत पर उपकार दी, भी ये बुक दे विच ना शब्द रूपी मूरत धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी है। ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी कौन ने? जिहड़े पर उपकारी भावना वाले ने। शायद दुनिया दे विच कोई अजिही मूरत नहीं होवेगी शरीरक करके, शरीरक तल ते ना अजिही मूरत नहीं होवेगी जिहदे अंदर दूजिआं नूं कुछ देण दी भावना होवे। वाहिगुरू भला करे दुनिया विच गुरु तेग बहादुर महाराज जी वर्गे इउं कह लो पखंडी लोक एक नहीं अनेकां ने, सैकड़े हज़ारां दी गिणती च ने, पर गुरु तेग बहादुर महाराज वांगू ना किसी नूं कुछ देण दी भावना वाले नहीं, कुछ लैण दी भावना वाले आ। दुनिया नूं ठगण दी भावना वाले तां है भी किवें ठग गए, मूँह दीआं मिठियां गल्लां सुणा के, जां सज्जण ठग वांगू वढ के, जां कोई झूठे दावे करके, कुछ देण लैण दे दावे करके, दुੱਧ पुੱਤ दीआं दातां देण करके किवें ठग गए। आपां नूं पता ना भी ठग्गां कोले ठगण दे लई बहुत वड्डे दिमाग हुंदे ने, ठगण दे लई। हाँ वो ठग गुरु तेग बहादुर महाराज दी बाहरों शकल तां बना लैणगे, भी इदां अखां मिच के बैठ भी जाणगे,
ਭੋਰੇ ਵੀ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ, सेवा करन दे ढंग भी कर लैणगे, पर चेता रखियो वो सारा कुछ काहदे लई आ? किसे नूं ठगण लई, किसे तो कुछ लैण लई। ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी किसे नूं कुछ दे रहे ने। अच्छा, दुनिया किसे नूं कुछ दिंदी आ, वैसे तो कोई दे के राजी नहीं, पर मान लो गुरु प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ दो, जिन्हां अंदर गुरु प्रथा शरधा ना उन्हां ਨੂੰ ਛੱਡ दो, उन्हां अंदर भावना है। वैसे तो किसी कोले कुछ देण दी भावना नहीं है, पर जे निगाह मार के वेखीए ना, दुनिया लीड़े दे सकती है, कपड़े भोजन दे सकती है, कुछ शरीरक लोड़ां पूरीआं करन दे लई रुपये दे सकती है, जमीन दे सकती है, सोना चांदी जवाहरत दे सकती है ना। दुनिया दा रिवाज आ भी जो किसे कोले कुछ है किसे नूं कुछ दे सकदा, पर वाहिगुरू भला करे जो मूरत पर उपकार दी। आप किताब का जिक्र किया भी, किताब का नाम मूरत पर उपकार। मूरत मीनज इहदे विच बहुत वड्डी एक मूरत छुपी हुई है, शब्द के रूप विच, अखरां दे रूप विच, 400 सवाल दे रूप विच बहुत वड्डी मूरत छुपी हुई है। 400 सवाल नूं जदों आपां पढ़ांगे ना ते साडे दिमाग विच ऐटोमैटिक धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी सचमुच पर उपकारी मूरत बस जाएगी। आ दुनियावी फोटो नहीं भी इदां भोरे च बैठे ने, माला घुमाई जांदे ने, होर इदां दे ढोंग ने, ना ना, वाहिगुरू भला करे साडे अंदर सचमुच 400 सवाल दे जवाब पढ़ के सचमुच ना गुरु तेग बहादुर महाराज की असली मूरत बसूगी। किहड़ी? पर तो भाव बगाना। उपकार, जेड़े उपकार असी किसे ते कीते ने, अपना विशा सी किसे नूं कुछ देना, ते गुरु साहब ने की दिता? सारा परिवार, अपना शरीर, अपना शरीर, अपनी शरीर रूपी चादर, अपनी शरीर रूपी चादर एक किसे दी इज्जत लई दे दिती। ढक लो अपनी इज्जत, ढक लो अपनी इज्जत, बच जाण तुहाडीआं जिंदां, बच जाण तुहाडे बच्चे, बच जाण तुहाडे घर, बच जाण तुहाडे धर्म। जिस भी तुसीं अपनी ढंग दे नाल जिंदगी जिउणी चाहुंदे हो ना, तां तुहाडी जिंदगी नूं सोहणा बनाउण दे लई मैं अपना आप कुर्बान कर देवांगा। ये परोपकारी मूरत आ, किसी नूं कुछ देण वाली मूरत आ, जिहनूं आपां कहने कुर्बानी, जिन्हों आप कहने गुरु साहब ने अपना आपा ते अपना परिवार किसे लिए कुर्बान कर दिता। अपना विषय सी भी किसे नूं कुछ देण दा, ते गुरु साहब जी खुद अपना आपा ही दे गए। लुकोया की आ? तो जिवें साडी कौम दे बड़े सोहणे विद्वान ने, विद्वानां दीआं जदों विचारां पढ़दे हैं ना, जिक्र की आउंदे ने, तुसीं बड़े वारी सुनिया पढ़िया बोलिया होवेगा भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साडी कौम तो ना भाई कुछ भी नहीं लुकोया, कुछ भी, सब कुछ साडे उत्तों कुर्बान कर दिता। जे लुकोया ना तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक चीज साडे तो लुको के ले गए। हुण निगाह मार के वेखो की लुकोयागा? पुत्रां दे दानी ने, माता पिता दे दानी ने, प्राणा तो प्यारे गुरसिखां दे दानी ने, जिन्हों आपां सरबंस दानी कहने हैं ना, पूरे दे पूरे सरबंस दानी सतगुरु ने। की लुकोयागा? निगाह मार के वेखो। पुत लुकोले ना, माता पिता लुकोले ना, घर-बार लुकोलिया ना, जमीन लुकोली कोई ना, हीरे मोती लुकोले ना, की लुकोया? कुछ तो लुकोई होना ना। सब कुछ वारन वाला गुरु, ओदे परथाए एक लफज वरत्या जांदा, इक्को ही चीज़ लुकोली। वो लुकोया की आ? गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ना अख दे विच हंझू लुकोले, वो नहीं बाहर कढ़े, वो नहीं सानू दिखाए। भावें पुत शहीद हो रहे ने, भावें बाप धन गुरु तेग बहादुर महाराज मूरत पर उपकार दी, भावें वो शहीद हो रही है, दिल्ली चांदनी चौक जा रही है, भावें परिवार विछड़ रहा, आनंदपुर भावें छड्डी जा रही है, भावें जंग युद्ध हो रहे ने, प्राणा तो प्यारे गुरसिख चढ़ाई कर रहे ने, पर चेता रखियो किते भी दशमेश पिता जी दे जीवन विच इदां दे
लफज सानू पढ़न नूं नहीं मिलते, सुनन नूं नहीं मिलते भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लोकां दे अगे जाके, किसी दुनियावी राजे अगे जाके, किसी दुनिया दे इकट्ठ विच जाके अपने हंझू सिट्टे होण भी की बनू, की हो गया, किद्दां हो गया। इदां दे हालात गुरु साहब ने नहीं, सगों उल्टा जदों भी अजिही घटना वापरदी आ तां शुक्र अकाल का कीया। अपना विषय थोड़ा जिहा इत्थों विचों ले लिया सी भी मूरत पर उपकार दी। मैं बेनती करूँगा जरूर ये बुक सारे पढ़िओ एक बारी जरूर, छोटी जी आ, 400 सवाल ते जवाब आ। तुहानूं सचमुच गुरु तेग बहादुर महाराज दे दर्शन होणगे सचमुच। एक तो फोटो आ ना, फोटो नहीं, फोटो तो सभी वेख लैने आ, हो सकदा मन की कल्पना बनाई होवे भी उदा मन के ख्याल बना के उदा उदा लिखती हुए फोटो ना। ये असली फोटो किहड़ी आ, कुछ पढ़ के, कुछ सुन के, कुछ समझ के फिर पता लगूगा। चलो कहण तो मुराद इत्थे गुरु साहब ने कहा सी, कहंदे भाई फिर मनुख दे अंदर ना पर उपकारी कारज करन दी भावना बन जाती है ते ओही मनुख चिंता तो मुक्त हुंदा है। ओही मनुख अपने अंदरों हौमे विकारां दी बिमारी नूं शब्द दी अग नाल मचा दिंदा है। शब्द जलाए हौमै माया शब्द जलाए, हौमे माया विकारी भावना नूं शब्द दी अग नाल साड़ दिंदा है। फिर गुरु साहब जी कहंदे ने जीवन मरण को समसर वेखै। वाहिगुरू भला करे जिहड़ी इत्थे गल है ना, मैनूं इउं लगदा जो आपां गल कहते गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे जिक्र कर लेना थोड़ा जिहा, सारे गुरु साहिबान साडे एक वाहिगुरू परमेश्वर परमात्मा दी जोत आ, आपां भी वो परमात्मा दी जोत आ, कोई अंतर नहीं है। कहो कबीर हम राम की अंश, फर्क कित्थे आ, किते भी नहीं है, फर्क किते नहीं ना। फिर आप गुरु साहिबान दे लई लफ्ज वरते 10 गुरु साहिबान भी वो खुद परमात्मा दी जोत ने। जिहड़े गुरु साहिबानां दे परथाए आपां जिक्र करदे आ भी वो परमात्मा दी जोत आ ना, उन्हां गुरु साहिबानां दे विचों आपां 9वें पातशाह ले लिया। हुण इत्थे की कहा गा, जीवन ते मरना, मतलब जिउणा जां शरीर करके मरना, जां तां जिउणा जां शरीर करके मरना। समसर जाना है, समसर तो भाव बरोबर। इत्थे ये नहीं भी जिउण नूं पहल दित्ती आ ते मरण तो मनुख झिझकदा होवे। एक गल ध्यान विच रखियो, मरण तो भाव इत्थे की मनना, आपां इत्थे वेखणागा भी जदों किते भी कुछ बचाउण दे लई अपने शरीर नूं कुर्बान करना पै जाए, कुछ बचाउण दे लई कुर्बान करना पै जाए तां उदों परवाह ना मन्नी। इत्थे उदां नहीं पता लिखिआ गा भी उदां ही भाव शरीर नूं किसे थोड़ी बहुती दुख तकलीफ आउण ते इहदी आत्म हत्या कर लै, खत्म कर लै इहनूं, कोई फाहा लै ला, कोई ट्रेन थले आ जा, कोई किदां दे होर हालात बना ला। इत्थे वो गल नहीं कीती भी बिना वजह तो मरण की गल नहीं कीती। इत्थे इत्थे जदों लोड़ पैण ते जो तो प्रेम खेलण का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। लिखिआ ना, पहला मरण कबूल जीवन की छड्ड आस, बरोबर भाव जे तू किसे नूं बचाउण दे लई, उदाहरण अज संघर्ष चल रहा गा, उस संघर्ष दे विच शरीर करके कोई मौत होंदी है। एक तो माफ करना मैं दूजी गल भी नाल कहांगा, एक तो बन गया अज पखंड, उत्थे जाओ मर जाओ। एक दो केस इहो जिहे होए नेगे, एक दो नहीं काफ़ी हो गए। 5-4 लाख का चैक लैण दे लई, थोड़ी बहुती शोभा खट्टण दे लई, ना 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 इदां दे काम ना करो भाई, करो भी ना ते उन्हां नूं मानता भी ना दिओ। हाँ जे कोई संघर्ष दे विच खत्म होया हैगा ओहदी कुर्बानी है, संघर्ष दे विच खत्म होया ओहदी कुर्बानी है। इदां नहीं है भी उदां घर दे कलेसां करके जां कोई चाल खेड के किसी तरह की गलबात हो जाए। सो इत्थे मैं कुछ बयान नहीं करना चाहुंदा। 1-2 दिन 5 दिन पहलां दी घटना बनी आ, वापरी आ भी घर वाली ने घर वाला मारिया कित्थे, उत्थे मरवाता, इत्थों उत्थे मरवाता। नहीं तां कहंदे मुंडे नूं नौकरी मिल जूगी, की रौला रूला पै के मिल जे, नाले 5-7 लाख 10 लाख रुपया मिल जूगा, ते नाले जीवन दे विच गलत सी ते गलत भावनावां पूरीआं हो जाणगीआं।
अच्छा पता लग ही जाता गा, सारी गलबात निकली आउंदी आ। जदों गलबात क्लीयर कीती ते कतल कौन निकलिया, बंदा मरिया दिल्ली आ ते कतल कौन निकलिया, घर वाली। घर वाली कित्थे, घर वाली पिंड आ, बंदा उत्थे मरेगा। सोचो इदां नहीं कुर्बानियां हुंदियां। इहनूं नहीं कहिंदेगे भी पहला मरण कबूल। पहला मरण कबूल दी भावना की आ भी कुछ करन दी भावना रख, भी तू संघर्ष दे विच चलदा चलदा मरे। परोपकारी भावना होवे किसी नूं बचाउण दे लई। तेरा शरीर तेरा जीवन, मतलब साडा जीवन किसी दी इज्जत नूं ढके, किसी दे भाव जीवन दा पल्ला बने, किसी दा कुछ सहारा बने, उहनूं कुर्बानी कहंदे नेगे। किसी दा कुछ बने। सतगुरु पातशाह जी कहते फिर जिन्हां ने ना जीवन नूं जिउण नूं भाव ते मरण नूं बरोबरता मान लई, ते नौवें पातशाह दा कही रहे ने, जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेहू अर भै नहीं जांकै, कंचन माटी मानै। ਇਹਦਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਪਰਥਾਏ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਸਾਲ ਤੇ 250 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ 20-50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਆਮ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਾ, ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਮਰ 7-9 ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ 100-200 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 700 ਸਾਲ ਵਰੇ ਵਰਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਆ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 700 ਸਾਲ ਵਰੇ ਵਰਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭਾਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਟ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਇੱਟਾਂ ਨੀਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਟ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਬਣੇ, ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਟ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਇੱਟ ਬਣ ਗਈ, ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਇੱਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਨੀ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਸਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਇੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਈਓ ਉਹ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਾਂਭਿਆ ਵਿਆਗਾ, ਸੰਭੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਸੰਸਰ ਜਾਣਾ, ਬਰੋਬਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਾਏ ਗਿਆ ਅਭਿਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦ ਲਾਗਾ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਅਨੰਦਨ ਗਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਪਾਈ, ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦਾ।
ਭਵ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁੱਝੀ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੇੜੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ। ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ